Hello 9th class students, this is my last video of chapter Jainism and Buddhism. This is our part 5th and in this I will cover the doctrine of Buddhism, the teachings of Mahatma Buddha, the organizations of Buddhism, and after this the split in the Buddhism, and at last I will tell you about the reasons of the decline of the Buddhism. First of all, I will tell you about the doctrines of Buddhism. In the doctrine of Buddhism, there are mainly two doctrines. First of all, Four Noble Truths, and second is the Eightfold Path. Under the Four Noble Truths, Mahatma Buddha said that the world is full of suffering. Listen it carefully. According to Mahatma Buddha, the world is full of suffering. Suffering means दुख, कि जो हमारा वर्ल्ड है वो दुखों से भरा हुआ है. वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग मीन्स एवरी पर्सन हैव सब सफरिंग. हमें पर पता है स्टूडेंट्स कि सभी जो लोग हैं वर्ल्ड में किसी ना किसी, हर एक को, एवरी वन इन द वर्ल्ड हैव सम सफरिंग. हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी पर्सन को कोई ना कोई यहाँ पर सफरिंग है. सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. एंड देन सेकेंड ट्रूथ इज द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर्स. कॉज मीन्स रीजंस. तो रीजंस क्या है सफरिंग का, इन दुखों का कारण क्या है, इज डिजायर्स. डिजायर्स मीन्स जो हमारी इच्छाएं हैं, एंडलेस डिजायर्स. देखो टुडे वी हैव द एंडलेस डिजायर्स में, देखो आज हमारे पास एक छोटा सा घर है ना, हम चाहते हैं कि हमारे पास उसके बाद बड़ा घर हो. तो मीन्स जो हमारी डिजायर्स है वो कभी खत्म नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव फोन सैमसंग कंपनी का अगर हमारे पास फोन है, देन वी डिजायर वी मस्ट हैव वन आईफोन. ठीक है, तो इस वे से जो डिजायर्स हैं, दीज आर द कॉज, दीज आर द रीजंस ऑफ सफरिंग. एंड देन ही सेड सफरिंग कुड बी एंडेड. जो ये सफरिंग है, जो ये दुख है, हम इनको खत्म कर सकते हैं. इट कुड बी एंडेड बाय एंडिंग डिजायर्स. अगर डिजायर्स ही नहीं रहेंगी, अगर डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, देन ऑटोमेटिकली सफरिंग कुड बी एंडेड. एंड डिजायर्स कुड बी एंडेड. एंड हाउ वी एंडेड द डिजायर्स. डिजायर्स को कैसे खत्म करना है हमने, डिजायर्स कुड बी एंडेड बाय फॉलोइंग द एटफोल्ड पथ. जो ये एटफोल्ड पथ है, इफ वी फॉलो दिस एटफोल्ड पथ, देन डिजायर्स कुड बी एंडेड. लिसन once again carefully about the Four Noble Truths. The world is full of suffering. The cause, the reason of suffering is desires. Suffering could be ended. The suffering could be ended by ending desires, and desires could be ended by following the eightfold path. Next is the eightfold path. अब eightfold path क्या है? First of all, there are the actually the eight values given by the Mahatma Buddha to be followed by a person. Firstly is the right understanding. अब right understanding क्या है? Means the person must understand the Four Noble Truths. Second is right thought. Right thought means right faith in Buddhism, right belief, right faith. Third is right speech. Right speech means to speak the truth, not to tell a lie, not to means not to say any bad words to others. Right speech must be there. Fourth is right conduct. Right conduct means adopt. We must adopt non-violence, not to steal anything. Means जो हमारा वे है काम करने का, कोई भी हमारा बिहेवियर है, the behavior of our must be right with others. Right means of livelihood. Fifth है right means of livelihood. Livelihood क्या होता है, देखो livelihood means the way, the job, the way from which we get our earnings. जहाँ से हमारी earnings हमें मिलती है, that is called the livelihood. तो it must be right. में right way होना चाहिए. हम जिस वे से अपनी धन को प्राप्त करते हैं, कमाई करते हैं किसी चीज़ से, हम किसी जॉब से, किसी प्रोफेशन से, that work must be right. Right mental attitude. Right mental attitude means we must not have any negative thoughts in our mind. कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए. We always have some positive thoughts. Right mindfulness. Right mindfulness means it means having a clear sense of mental state,
बॉडली हेल्थ एंड फीलिंग्स। तो हमारी जो बॉडली हेल्थ है, फीलिंग्स है, इट मस्ट बी राइट। Right concentration means right type of meditation we must have done. Concentration means meditation. We must do the right meditation. So these are the eightfold path: right understanding, right thought, right speech, right conduct, right means of livelihood, right mental attitude, right mindfulness, and right concentration. Other teachings of Buddha. First of all, he told about the theory of karma. According to him, the condition of a man in this and the next life डिपेंड्स ऑन हिज डीड्स। देखो जो कंडीशन है मैन की, जो मैन की जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है ऑन हिज डीड्स। ऑन हिज डीड्स मीन जिस तरह का देखो वो काम करता है। अगर देखो एक मैन अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करेगा बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो मीन्स थ्योरी ऑफ कर्मा, विच वर्क वी डन बैड और गुड वी विल गेट द सेम। द कंडीशन ऑफ ए मैन इन दिस एंड द नेक्स्ट लाइफ, हमारे नेक्स्ट जो बर्थ होगा उस वो भी इसी बर्थ पर डिपेंड करता है ऑन आवर डीड्स। नेक्स्ट इज अबाउट द सेकंड इज निर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है? देखो बताया था मैंने आपको पहले भी इन द प्रीवियस वीडियो। निर्वाणा मीन्स द अल्टीमेट एम इन द लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा और सल्वेशन, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उससे फ्री होना, दैट इज द अल्टीमेट एम। तो हमारी लाइफ का एम क्या होना चाहिए? टू अटेन द निर्वाणा, मीन्स टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉट टू इंजर एनीवन। ही वॉज अंगेज टू हार्म एनी लिविंग बीइंग। तो किसी भी को भी हार्म करने के ये अंगेज थे, सेम एज द जैनिज्म प्रिंसिपल। नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम, he was opposed to the caste system. इनकी means according to him all people are equal, there is no caste system, no Brahmanism, no one is Kshatriya, no one is Shudras, all are equal. No belief in rituals and sacrifices. देखो जो उस टाइम पर जो हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, जो भी रीति रिवाज थे, ठीक है, he rejected the worship of God. तो इन सब चीजों के एंगेज थे ये महात्मा बुद्धा। He rejected the worship of God. He said that rituals and sacrifices are meaningless. तो इनके अकॉर्डिंगली जो भी रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, वो क्या थे? दे आर द मीनिंगलेस। इनका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। दे हैव नो इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। स्ट्रेस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरालिटी। तो इन्होंने मीन्स ही वॉज इन द फेवर ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। इन्होंने एक्चुअली में कुछ एक मॉरल वैल्यूज बताई हैं। ही एडवोकेटेड सम ऑफ द मॉरल वैल्यूज लाइक the person must adopt in his life, that is the truthfulness, be obedience to parents, respect for elders, and some other etc. Means this type of the moral values was advocated by the Mahatma Buddha. These are the other teachings of Mahatma Buddha. Next I will tell you about the organizations of Buddhism. Organizations of Buddhism means you can say that how Buddhism was spread in the India and the other parts of the world also. First of all, Sangha. Sangha क्या होता है? The word Sangha means associations or assembly, means group of persons. A group of persons is called a Sangha. जब देखो एक group of persons join होते हैं for a similar motive to fulfill a similar aim, that is called a Sangha. तो यहाँ पर ऐसे संघर्ष बने थे in the Buddhism. The word Sangha means association or the assembly. एक्चुअली इट वॉज अ मोनेस्टिक कम्युनिटी। देखो ये क्या था? ये एक मोनेस्टिक कम्युनिटी थी ऑफ द मोंक्स एंड नन्स। मोंक्स एंड नन्स क्या होते हैं? मोंक्स आर एक्चुअली में मेल मेंबर्स एंड नन्स आर द फीमेल मेंबर्स ऑफ द मोनेस्ट्रीज। जो मोनेस्ट्रीज एक्चुअली जो देखो बुद्धिज्म में जो भी ऐसे मोंक्स और नन को टीचिंग्स प्रोवाइड करने के लिए जो लाइक स्कूल्स आप कह सकते हो टू गेट द रिलीजियस एजुकेशन ऑफ द बुद्धिज्म, ऐसा जो भी मोनेस्ट्रीज वगैरह ओपन हुई थी, दैट इन दैट वन जो स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पर टीचिंग अपने लेने के लिए बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो जो मेल मेंबर्स थे ऑफ दिस मोनेस्ट्रिक कम्युनिटी के, दे वर कॉल्ड द मॉन्क्स एंड द फीमेल्स वर कॉल्ड द नन्स, एंड दे वर कॉल्ड द भिक्षुक्स, मीन्स मॉन्क्स वर कॉल्ड द भिक्षुक्स एंड नन्स वर कॉल्ड द भिक्षुक्स। एंड दे लेक्ट द डिसिप्लिन लाइफ। इनकी काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ थी विच वाज फुल ऑफ द मोरालिटी। इनके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर एक मोरल वैल्यूज एडप्ट की गई थी विच दे हैव टू बी फॉलो व्हेन दे लिव्ड इन द
monasteries. They had been spreading Buddhism to different parts of India and the world. अब जो ये ऐसे monastic community थी, जो संघ थे, इन्होंने काफ़ी help की to spread the Buddhism in the different parts of the India and the world also. Next is the royal patronage. अब royal patronage क्या होता है? देखो, जब royal का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई ऐसा कोई royal authority को king और queen, जब कोई नोबल फैमिली से कोई मेंबर है, जब वो किसी चीज़ को एनकरेज करते हैं, पैटर्नेज मीन्स एनकरेज करते हैं, मीन्स प्रोवाइडिंग द मनी, प्रोवाइडिंग द लैंड, दैट इज कॉल्ड द पैटर्नेज. तो रूलर्स लाइक अशोका, हर्षा, कनिष्क गेव पैटर्नेज टू बुद्धिज्म. तो इन रूलर्स ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया. अशोका, एक्चुअली देखो, अशोका का काफ़ी रेफरेंस है मॉडर्न एम्पायर में. हम अशोका के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अशोका एक्चुअली बिल्ड 84,000 स्तूपास. देखो, अशोका ने कहते हैं 84,000 स्तूपास बिल्टअप किए थे इन द ऑनर ऑफ द महात्मा बुद्धा, जिसके बारे में बेटा हमको डिटेल में मैं बताऊंगी आगे चलकर मॉडर्न एम्पायर में. तो अशोका था, हर्षा था, कनिष्क कॉल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, एक्चुअली में काउंसिल क्या होता है? जिसमें कि सभी स्कॉलर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के, उनकी गैदरिंग्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उनकी आपस में डिस्कशंस होती हैं. एंड इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क ने हेल्ड की थी, उस टाइम पर जो ये बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया था इनटू द 2 पार्ट्स. ओके, तो रूलर्स थे अशोका, हर्षा, कनिष्का गिव पैटर्नेज टू बुद्धिज्म. इन्होंने एनकरेज किया, प्रमोट किया बुद्धिज्म को. दे सेंड बुद्धिस्ट मिशनरीज. बुद्धिस्ट मिशनरीज क्या होते हैं? जो एक तरह से मैसेंजर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, लाइक दे हू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन. तो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपने कुछ एक पर्सनस को, कुछ एक मेंबर्स को सेंड किया टू द अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, जापान, कोरिया, चाइना एंड बर्मा. नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटीज. द यूनिवर्सिटीज वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड लाइक नालंदा एंड तक्षशिला, which became the important centers of Buddhist learning, and they attracted students from foreign countries also. तो यहाँ पर जो नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी, तो यहाँ पर बेटा फॉरेन कंट्रीज से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पर टीचिंग लेने के लिए रिगार्डिंग द बुद्धिज्म. तो दीज यूनिवर्सिटीज आल्सो हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट इज आवर दैट इज अ स्प्लिट इन द बुद्धिज्म. अब देखो, स्प्लिट कैसे हुआ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, हिनायाना एंड महायाना. हिनायाना क्या था? लेसर व्हीकल ऑफ सल्वेशन, एंड महायाना वाज द ग्रेटर व्हीकल ऑफ द सल्वेशन. देखो, हिनायाना, दे लुक्ड अपॉन बुद्धा एज देयर टीचर. अब ये कहते थे कि जो बुद्धा है वो क्या है? एक उनके टीचर हैं, गाइडर हैं, नॉट एज अ गॉड. वो एक्चुअली दे डिड नॉट कंसिडर द बुद्धा एज अ गॉड. ओके, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप. इनका आइडल वर्शिप में भी कोई बिलीव नहीं था. दे हैड द 8 आइडल वर्शिप क्या होता है? मूर्ति पूजा. ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप. दे हैड द 8-fold पथ एज अ मीन्स ऑफ सल्वेशन. वो कहते थे कि हमें सभी को 8-fold पथ को अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा फ्री करेगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. देयर लैंग्वेज वॉज मेनली पाली लैंग्वेज थी इनकी मेनली. एंड दिस सेक्ट इज फाउंड इन श्रीलंका एंड सम अदर कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया. महायाना में क्या था? दे लुक्ड बुद्धा एज ए गॉड. अब देखो, ये कंसिडर करते थे बुद्धा को एज ए गॉड. सो दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप. अब इन्होंने बुद्धा की रिलेटेड जो भी बौद्धिस्ट था उनकी मूर्तियां बननी स्टार्ट कर दी. एंड दे वर्शिप द महात्मा बुद्धा. दे बिलीव्ड इन यूनिवर्सल लिबरेशन. यूनिवर्सल लिबरेशन का मीन्स क्या होता है? कि हेल्प टू अदर्स एंड टू गाइड अदर्स हाउ दे गेट द सल्वेशन. तो इस दे बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल लिबरेशन. दे यूज संस्कृत लैंग्वेज. अब देखो, यहाँ पे पाली लैंग्वेज थी, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज यूज की. दिस सेक्ट इज फाउंड इन बांग्लादेश, चाइना, जापान, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा. तो इन दीज कंट्रीज में देखो, ये महायाना जो था, दिस सेक्ट इज फाउंड. लास्ट इज आवर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. हाउ द बुद्धिज्म वाज डिक्लाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज. देखो, जब ये किंग्स जो थे आफ्टर डेथ ऑफ द अशोका, कनिष्क, देयर वाज नो लॉन्गर रूलर वाज देयर हु प्रमोटेड द बुद्धिज्म. ठीक है, तो जब रॉयल पैटर्नेज मिलनी बंद होगी, एनकरेजमेंट नहीं मिली बुद्धिज्म को, देन इट वाज डिक्लाइंड. इंटरनल वीकनेस ऑफ बुद्धिज्म. इंटरनल वीकनेस क्या थी? अभी बताया मैंने आपको दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हिनायाना एंड महायाना. एंड दे आल्सो दीज 2 पार्ट्स, दीज जो ये दोनों के दोनों जो थे, हिनायाना एंड महायाना ग्रुप्स ऑफ बुद्धिज्म,
they always they also engaged each other. वो एक दूसरे के engaged थे. Okay, so people were confused to which they follow. So in this way जो internal weakness थी बुद्धिज्म की, it was also a reason for the decline of Buddhism. Reformation of Hinduism, जब गुप्ताज आए, गुप्ता रूलर्स आए, या फिर जब हम कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हिंदुइज्म को फिर से प्रमोट किया गया. जब गुप्ता रूलर्स प्रमोटेड हिंदुइज्म, तो इसमें भी जो इविल्स थे हिंदुइज्म में, द गुप्ता रूलर्स रिमूव दैट इविल्स इन द हिंदुइज्म. एंड जब इसमें रिफॉर्मेशन हुआ, देन पीपल अगेन ज्वाइन द हिंदुइज्म. करप्शन, अब देखो जो रॉयल पैटर्नेज के कारण जो मोनेस्ट्रीज थी, ठीक है, जो संघ वगैरह थे, दे बिकम वेल्दी, वो वेल्दी हो चुके थे काफ़ी. एंड जो वहाँ पर जो मोंक्स एंड नन थे, दे बिकम करप्टेड. जो मोरल उनको एक्चुअली जो बोला गया था, हार्ड डिसिप्लिन जो था, दे डिड नॉट फॉलो द हार्ड डिसिप्लिन, हार्ड रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर. एंड इन दिस वे करप्शन प्रिवेल्स इन द बुद्धिज्म. Language, now Sanskrit language was again adopted by the Mahayana, so which was typical for the people to understand it. Foreign invasion, at last देखो जो foreign invasion हुआ, foreign invaders were there. Turks invaded India many times, and then they destroyed Buddhist monasteries. Nalanda and Dakshina universities were destroyed by these Muslim invaders. And in this way, जब इसके डिस्ट्रॉय किया गया, दे बर्न्ट द इवन आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द रिलेटिंग टू द बुद्धिज्म. तो फॉरेन इन्वेशन वाज अ मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट्स, मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉस ऑफ राइट पैटर्नेज, इंटरनल वीकनेस ऑफ बुद्धिज्म, रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, करप्शन, लैंग्वेज एंड द फॉरेन इन्वेशन. And this is all about today, and our chapter 3 is completed. Hope you are studying at your home. Have a nice day. Goodbye all of you.